Hello dear students. Today we will discuss the bookwork of the chapter 5 more on the PowerPoint 2010. That was your chapter name. In the previous sessions we have done the practical of this chapter and today we will discuss the bookwork of this. Now I am writing the bookwork, answer key of the bookwork, filling the blanks, true, false and MCQs here. You can see it and read it from here. You can write down from here into your books and after that we will discuss it. Filling the blanks, first answer is insert table, second is pen color, third is shading, fourth is plot area, fifth is data series and sixth is the draw borders. And the true false answer is first is false, second is true, third is true, fourth is false, fifth is true, sixth is false and seventh is true. I think all is clear to you. MCQs में first का answer है C, that is cell, second का answer B, legend, and third का आंसर A, alignment, fourth का आंसर B, table tools, and fifth का आंसर C, insert, and sixth का आंसर B, 6. Now I have written here and you can tick mark on your book. Bookwork you will do in your book and after that we will discuss the question answer of this and I will surely send you the PDF of the question answer of this. You have to write down the question answer in notebook and the bookwork in the book. Now we will discuss this bookwork, filling the blanks, true, false and the MCQs. Now move to your book. Now we move to the filling the blanks. First filling the blanks is, we specify number of the rows in the dash dialog box. Number of the rows हम कौन से dialog box में जाकर specify करते थे? If you have learned to it, नंबर ऑफ द रोज हम इंसर्ट टेबल में जाके स्पेसिफाई करते थे. तो दिस इज नंबर ऑफ द रोज वर इन द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स. नाउ द सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स इज डैश टूल इज यूज टू चेंज द सेल्स, रोज, कॉलम एंड द बॉर्डर कलर. बॉर्डर कलर हम कौन सा टूल यूज करते थे बॉर्डर कलर को चेंज करने के लिए? आपको प्रैक्टिकल अगर आपने किया है तो then you should know it. We use the pen color tool to change the cell, rows and the columns border color. Now the third filling the blanks is, the dash tool is used to apply different background colors in the table. Which tool is used to apply the background color in a table? एक टेबल में background color हम देने के लिए क्या यूज करते थे? We always use the shading to give the background color in a table. What was the background color? If you have given a table title and title के background में अगर आपने कुछ कलर देना है तो हम किस में जाकर चेंज करते थे, अप्लाई करते थे? शेडिंग टूल में जाकर हम उसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते थे. फोर्थ इज द डैश इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया डैट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट. हमने दो तरह के चार्ट एरिया पढ़े थे, एक तो चार्ट एरिया और एक प्लॉट एरिया. चार्ट एरिया में प्लॉट एरिया भी आता था, चार्ट का टाइटल भी आता था, डेटा सीरीज भी आती थी, कंप्लीट एरिया ऑफ अ चार्ट जिसमें कंप्लीट एरिया आता था. लेकिन प्लॉट एरिया में जिस एरिया में सिर्फ चार्ट ड्रॉन था, दैट इज नोन एज द प्लॉट एरिया. तो अगर हमें चार्ट में कुछ चेंज करना है देन वी हैव टू गो टू द प्लॉट एरिया, देन वी कैन चेंज इट. Now the fifth filling the blanks is, dash are the bars that show the data value. ऐसी कौन सी bars हैं जो data values को show करती हैं? As we have done in our practical sessions, when we have insert the chart in a presentation, you can see there are the bars. We have taken the bar graph. There are the bar of the color red, green and blue. Or on the right hand side, some small dots are made. That was of the green, red and blue color. और उसके ऊपर red किसके लिए है, blue किस पर्पज़ के लिए है and green किस पर्पज़ के लिए है, तो उसके बारे में जहाँ पर लिखा होता है that is known as the data series. उसको हम क्या बोलते हैं? data series. तो data series are the bars that shows the data value. Now the sixth filling the blanks is, the pen weight tool is present in the dash group. पेन वेट टूल कौन से ग्रुप में होता है? पेन वेट टूल इज़ प्रेजेंट इन द ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप, जहाँ पर हम पेन कलर यूज़ करते हैं बॉर्डर को ड्रॉ करने के लिए.
उसी के अंदर उसकी विड्थ को मेंशन करने के लिए वी यूज़ द पेन वेट टूल. The pen weight tool is present in the draw border group. Now I think this 6 filling the blanks is clear to you. Now let's move to the state true and false. Now the first is to insert a table in a presentation we should use title slide layout. तो आप ये कर चुके हो. टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी स्लाइड को इंसर्ट करते थे? डैट वाज टाइटल स्लाइड आउट. जस्ट थिंक. नो, दैट स्लाइड्स वर टाइटल एंड कंटेंट. इट वाज नॉट अ टाइटल स्लाइड लेआउट. सो इट्स आंसर इज फॉल्स. नाउ द सेकेंड ट्रू एंड फॉल्स इज text can be entered in a table by clicking on the desired cell. कि जब भी आप डिज़ायर्ड सेल में क्लिक करते हैं देन यू कैन एंटर अ टेक्स्ट इन इट. yes, when you want to write something in a table then you will just go in a cell and click there, then an pointer will be shown here as a line. In through that pointer you can enter a text in a table. So this is true. First is false and second is true. Now third is multiple rows can be added in a table. अगर आपने एक टेबल क्रिएट कर ली है और उसमें आप और रोज़ डालना चाहते हैं, आफ्टर सम टाइम्स यू रियलाइज दैट वी वांट टू ऐड मोर रोज़, तो ऑप्शन हमने कर चुके हैं कि जिस सेल के अबव या बिलो हमने इंसर्ट रो करनी है वहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे एंड इंसर्ट अबव एंड बिलो पर जाकर क्लिक कर देंगे. जब तो वहाँ पर रोज़ इंसर्ट हो जाएगी. तो इस तरह हम जितनी भी रोज़ चाहें वी कैन इंसर्टेड एज मैनी रोज़ एज वी वांट. सो मल्टीपल रोज़ कैन बी एडेड इन अ टेबल. दैट इज़ ट्रू. नाउ द फोर्थ, द बॉर्डर ऑफ अ टेबल कैन नॉट बी मॉडिफाइड. जो टेबल का बॉर्डर है हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. टेल मी, इज इट ट्रू एंड फॉल्स? पेन कलर का क्या यूज़ था? पेन कलर टेबल के बॉर्डर का कलर चेंज करता था और पेन वेट उसकी विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करता था. तो इट मीन्स वी कैन मॉडिफाई द बॉर्डर ऑफ अ टेबल. सो इसके अंदर ट्रू फॉल्स में इट विल कम एज अ फॉल्स. The border of a table cannot be modified, so it will be false. We can modify. Now move to the fifth true and false. When we insert a chart. Now the fifth true false is when we insert a chart, the data is also displayed in a special window called the data sheet. यस, जैसे ही हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली एक एक्सेल शीट ओपन हो जाती है साइड पे और इस एक्सेल शीट में सारा डेटा होता है. उस डेटा को हम क्या बोलते हैं? डेटा शीट. उस शीट को तो इसने बोला है जब हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो जो डेटा डिस्प्लेड होता है स्पेशल विंडो में दैट इज़ कॉल्ड द डेटा शीट. यस, दैट इज़ ट्रू. Now sixth is we cannot delete the entire data of a data sheet. हम डेटा शीट का entire data delete नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? We have done in our practical कि हम डेटा शीट में लेफ़्ट कॉर्नर पे बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर पे जाते हैं, देन आवर पॉइंटर विल बी चेंजेस टू द प्लस साइन, तो सारी शीट सेलेक्ट हो जाती है और जैसे ही हम डिलीट पर क्लिक करते हैं ऑल डेटा विल बी डिलीटेड. So we can delete the entire data of a data sheet. That is written we cannot. The sixth answer is false. Now the seventh is the text is aligned to the top of a cell by default. जैसे ही आप टेबल के सेल में whatever you are writing that will be aligned at the top. वो टॉप पर लिखा जाएगा, ना मिडल में ना डाउन में, जब तक आप उसकी अलाइनमेंट नहीं करते. यस, बाय डिफ़ॉल्ट वो टॉप पर ही आता है. दैट इज़ ट्रू. नाउ योर फर्स्ट इज़ फॉल्स, सेकेंड इज़ ट्रू, थर्ड इज़ ट्रू, फोर्थ इज़ फॉल्स
fifth is true, sixth is false, and seventh is true. Now we have done true and false. Now move to the next topic, that is application based questions. Now you can write the answer. फर्स्ट आंसर इज टाइट, मैं बोल रही हूँ, अगर आपको ये राइटिंग क्लियर नहीं हो रही तो फर्स्ट आंसर इज टाइटल एंड कंटेंट, एंड सेकेंड आंसर इज राइट क्लिक इन द सेल पर जाओ, राइट क्लिक करो, क्लिक ऑन द इंसर्ट रो अबव एंड इंसर्ट रो बिलो ऑप्शन. आपको जहाँ भी रो को इंसर्ट करना है, इंसर्ट रो अबव एंड इंसर्ट रो बिलो ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो. Now the application based questions we are writing. I will make it clear to you. First is Rajiv has created a presentation of 5 slides in a Microsoft PowerPoint. राजीव ने एक 5 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन तैयार की है. In all the 5 slides he have used only टेक्स्ट. उन 5 स्लाइड्स में वो टेक्स्ट लिख रहा है. एंड ही वॉन्ट्स टू ऐड 1 or more slides in which he would insert chart and clip art. Suggest which type of slides should he use for the same. अगर हमें कुछ भी इंसर्ट करना है लाइक कोई चार्ट या क्लिप आर्ट, तो हम कौन सी स्लाइड चूज़ करते थे न्यू स्लाइड में जाकर? टाइटल एंड कंटेंट, क्योंकि टाइटल एंड कंटेंट के बिल्कुल बीच में सम आइकन्स आर देयर. थ्रू दैट आइकन्स यू कैन इंसर्ट अ डायरेक्ट टेबल, यू कैन इंसर्ट डायरेक्ट चार्ट, यू कैन इंसर्ट डायरेक्ट न्यू पिक्चर, यू कैन इंसर्ट डायरेक्ट न्यू मूवी, वट एवर वीडियो. तो जो भी हमें इंसर्ट करना है, इस तरह की ऑप्शन टाइटल एंड कंटेंट में होती है और वहाँ जाकर हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं. Now the second application based question is Sumit is working in Microsoft PowerPoint 2010. Sumit Microsoft PowerPoint 2010 में काम कर रहा है. He has created a table of 4 and 5 rows. उसने 4 rows और 5 columns की एक टेबल क्रिएट की है. Then he realized he needs 1 more row in a same table, कि सेम टेबल में उसे एक और रो चाहिए. To help him by suggesting the correct to perform this task. तो कैसे वो करेक्टली इसको परफॉर्म कर सकता है? तो नीचे भी ऑप्शंस मैंने बताए हैं. हम इंसर्ट कैसे करते थे? सेल में जाकर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑप्शन आता है इंसर्ट पे जाकर वो पूछता है इंसर्ट रो अबव या इंसर्ट रो बिलो. तो जहाँ भी हमें कोई रो इंसर्ट करनी है हम वहाँ जाकर क्लिक कर देते हैं. बाय दिस मेथड वी कैन इंसर्ट अ रो अबव एंड इंसर्ट अ रो below. So these are the application based question. Now move to the MCQs questions. MCQs में first question is intersection of a row and column is called. जहाँ पर रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? That is known as a cell. क्योंकि सेल में हमने सेल का नंबर जैसे हम लेते हैं, सपोज सेल एड्रेस इज A5, तो A इज़ रो एंड 5 इज़ कॉलम नंबर. तो सेल एंड रो को इंटरसेक्शन पर क्या बनता है? डैट इज़ नोन एज द सेल. तो इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड द कॉलम इज कॉल्ड अ सेल. इट्स आंसर इज C, सेल. नाउ द सेकेंड इज डैश डिपिक्ट्स द पैटर्न, कलर्स, सिम्बल्स विच असाइन टू द डेटा सीरीज. डेटा सीरीज क्या थी? जो राइट हैंड साइड पर स्मॉल डॉट्स बने हुए थे विच वी हैव डन इन आवर चार्ट, जो कलर्स के बारे में बताते थे कि पैटर्न क्या है, कलर क्या है, सिंबल क्या यूज़ कर रहे हैं. जिन सब डाटा सीरीज को डिपिक्ट करते हैं उसको हम बोलते क्या है? डैट इज़ नोन एज द लीजेंड. डैट इज़ नोन एज द लीजेंड. तो सिक्स्थ आंसर इज B, लीजेंड. And first answer is C, cell. Now these two are clear to you. Now move to the third MCQs. That is dash refers to positioning of a text in a cell.
जो सेल में हम टेक्स्ट लिखते हैं उसकी पोजीशन को हम कैसे सेट करते हैं। मान लो हमने उसकी पोजीशन को सेट करना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड पर आए या राइट हैंड साइड पर आए या सेंटर में आए या टॉप में आए या बिलो में आए। इन सब सेटिंग को हम किसके थ्रू जाकर सेट करते हैं, अलाइनमेंट सेल में। तो दैट पोजीशनिंग इज नोन एज अलाइनमेंट। तो इट्स आंसर इज ए, अलाइनमेंट। Now move to the fourth MCQs. After inserting a table in PowerPoint 2010, the dash tab appears automatically. जैसे ही हम टेबल PowerPoint में एक टेबल को इंसर्ट करते हैं उसके बाद कौन सी टॉप which tab appears automatically? Tables tools. जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करोगे पहले ऊपर आप मेन्यू बार में देखोगे टेबल टूल की टैब नहीं होगी। एज द टेबल इज इंसर्टेड इन अ PowerPoint presentation in a slides, you can see the table tools in the menu bar. So its answer is B, table tools. Now fifth, in Microsoft PowerPoint 2010, chart button is present on the. चार्ट इंसर्ट करना है तो हम कहाँ जाते हैं, या तो हम टेबल एंड कंटेंट स्लाइड इंसर्ट करें और डायरेक्ट उसके बीच में जहाँ चार्ट है उस आइकन पे क्लिक कर दें, या ऊपर मेन्यू बार में हम इंसर्ट टैब पर क्लिक कर इंसर्ट टैब में जाकर चार्ट की ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। तो चार्ट बटन कहाँ प्रेजेंट होगा, डैट विल बी प्रेजेंट ऑन द इंसर्ट टैब। सो फिफ्थ आंसर इज सी, दैट इज इंसर्ट। नाउ सिक्स्थ, देयर आर डैश अलाइनमेंट बटन्स ऑन द लेआउट टैब। लेआउट टैब पर कितने अलाइनमेंट बटन है, देयर आर 6। क्या करता है, एक अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, और एक अलाइनमेंट को वर्टिकली अलाइनमेंट टॉप, वर्टिकली सेंटर एंड वर्टिकली डाउन, टॉप, बॉटम एंड सेंटर। तो ये these 6 alignments you can see on the layout tab. So its answer is B, 6. Now I think this book work is clear to you. So please do this book work in the book. In my next video we will discuss the question answers of this chapter. Now if you are not having the book, so don't worry, you can see this, you can just write the book work in a rough notebook for your reference, and you will have to write down only question answer in your notebook. You will not write the book work in the book. Book work you will do in the book. Who are having the books, they can do in books, and who are not having the books, they will write down in a rough notebook for their reference. So okay, thank you and have a nice day.